Hello students, in this video we will discuss some topics of second chapter structure of atom. So here we will discuss the discovery of electron and proton and J.J. Thomson model in detail. And also these are the topics from this chapter that we will cover, and these topics are very important and the questions are asked every year on these topics. The topics, very important topics from this chapter are atomic models. Here we will study three models of atom. Next is the concept of shells and subshell. Then we will study the dual nature of matter and light. De Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle. Next, the important topic is concept of orbitals and quantum numbers. Quantum numbers is a very important topic of the chapter. Then we will discuss the shapes of s, p, d, f orbitals. And the last and very important topic of the chapter is electronic configuration. इस टॉपिक में हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. सारे रूल्स जो भी हैं रूल्स, हंट्स रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबाउस प्रिंसिपल है. तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जामिनेशंस में आएंगे. सो सबसे पहले हम ये करते हैं टॉपिक स्टार्ट. व्हाट इज़ एन एटम? सो एटम वी नो इज़ a very small entity that we can't see with the naked eye, and it is composed of further subatomic particles. एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं which constitute an atom. These particles are electrons, protons and neutrons. Other than that we have positrons, neutrino, these particles also, mesons also. But out of all the subatomic particles, these three particles are called fundamental particles. These are the main constituent of a given atom. So here I have written all the values for the atomic mass and atomic mass nahi, mass of the particle, charge of particle and their discoverer. So the mass of electron is 9.1 into 10 to minus 28 gram, and electron is represented as this -1 E0. So the proton is represented as 1H1, neutron is represented as 0 and 1. So these are the masses of electron, proton and neutron. These are the relative masses. Relative masses means in terms of atomic mass unit scale, the masses are these. On coming to the charge, electron have charge minus 1.60 into 10 to minus 19 coulomb. Proton has same charge but positive, and neutrons are neutral particles. So in terms of relative charges, they have electron have -1 charge, proton +1, neutron 0. And electrons are discovered by J.J. Thomson, proton by Rutherford, and neutron was discovered by Chadwick. Now let us discuss the discovery of electrons, or we will discuss cathode ray. Basically cathode rays are also called beam of electron or electron beam, and electrons जो हैं that are considered the constituents of cathode ray. मीन्स कैथोड रेज क्या है? बेसिकली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये स्टडी कैसे करी थी हमने इसकी? हमने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं. क्रुक्स ट्यूब, इसमें हमने इवैक्यूएट करा हुआ है इस ट्यूब को, वैक्यूम पंप के साथ इसको कनेक्ट किया है टू क्रिएट वैक्यूम, गैसेस को रिमूव करने के लिए. और मोस्टली हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द गैसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस डिस्चार्ज ट्यूब, एंड इन दिस ट्यूब वी हैव टेकन 2 इलेक्ट्रोड्स. वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड. कैथोड इज नेगेटिव, connected to the negative terminals of the battery, and anode is connected to the positive terminal of the battery. When a very high voltage is passed across the invisible, जैसे ही हम इस ट्यूब में बहुत हाई वोल्टेज ऑलमोस्ट अबाउट 10,000 इस वोल्टेज की जो है पास करते हैं, इस हाई वोल्टेज पास करते हैं, तो
वी सी, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऑपोजिट साइड का जो इलेक्ट्रोड है इट स्टार्ट ग्लोइंग, यहाँ पे ग्लो करना हो जाता है, ये जो साइड है ये ग्लो करनी स्टार्ट कर देती है। बट जो भी यहाँ से बीम निकलेगी दैट इज़ इनविजिबल। जो कैथोड रेज हैं दैट आर इनविजिबल रेज। बट हमें पता कैसे चला कि यहाँ कुछ प्रोड्यूस हुआ है, कुछ निकला है? क्योंकि पॉजिटिव साइड ग्लो कर रही है इस ट्यूब की, इट मीन्स समथिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैज़ इजेक्टेड। सो द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड should have negative charge and they are traveling toward positive charge. So negative charged rays are called cathode rays, right? अगर हम इन रेज की जो पाथ है दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ में जा रही हैं, बट अगर हम इनके पाथ में कोई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो दे गॉट डिफ्लेक्टेड। क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, दे आर कमिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो फिर ये जो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, सो इट मीन्स दीज रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। सो लेटर ऑन इन्हीं रेज में ये जो रेज हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है? सो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन until and unless some electric or magnetic field is applied on their path. अदरवाइज ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं विद वेरी हाई वेलोसिटी। सेकेंड, दे प्रोड्यूस ग्लो व्हेन स्ट्राइक द फ्लोरिसेंट स्क्रीन। कोई अगर इनकी पाथ में एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दें तो जब ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगी तो दे प्रोड्यूस ग्लो। ऑल्सो दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे कोलाइड विद द मैटर। हीट प्रोड्यूस कर रही हैं किसी के साथ टकरा के, इट मीन्स दीज रेज कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स। मीन्स ये जो करेक्टर हैं ग्लो प्रोड्यूस करना एंड हीट प्रोड्यूस करना, सिमिलरली जो है दे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट करेक्टर है हाई काइनेटिक एनर्जी। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, this is also another character, and the very important character of these rays is that these rays possess kinetic energy, and we know kinetic energy is equal to half mv square, means mass and velocity. It means these rays has particles which has some mass. कोई ना कोई मटीरियल पार्टिकल्स हैं इसके इन रेज में, उसी मटीरियल पार्टिकल्स को हमने बाद में क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन्स का। सो दीज रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अभी हमने पढ़ा कि जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं दे प्रोड्यूस ग्लो। नेक्स्ट करेक्टर इज दीज रे कैन पेनिट्रेट थ्रू द फॉइल, थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल। मीन्स अगर हम इनको सॉलिड मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो उस मटेरियल में, उस मेटल फॉइल में ये पेनिट्रेट एंटर कर जाती हैं। अगर हम इनको गैसेस में से पास करवाते हैं तो दीज रेज कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। मीन्स कंसिडर आयनाइजेशन मीन्स कंसिडर वी हैव HCl गैस। तो अगर हम इस रेज में से कैथोड इस गैसेस HCl में से कैथोड रेज पास करते हैं तो इट कॉज द आयनाइजेशन, मीन्स इट ब्रेक दीज गैसेस मॉलिक्यूल इनटू आयंस H+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। सो ये जो रेज हैं इनकी जो नेचर है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड, कौन सा मटेरियल का कैथोड हमने यूज़ करा है, एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कौन सी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करी है। इसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता कैथोड रेज की अपनी ही, कोई भी हम गैस यूज़ कर लें, कोई भी कैथोड यूज़ कर लें, किसी भी मटेरियल का कैथोड रेज आर सेम, वही रहेंगी। सो लेटर ऑन बाद में जो जे थॉमसन हैं उन्होंने डिस्कवरी करी, नेक्स्ट पढ़ा इनका EM रेशो पढ़ी, चार्ज देखा। चार्ज जो है आई एम सेइंग E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो। ये रेशो मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट से, मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से फाइंड आउट करी गई। तो बाद में ये देखा गया कि ये जो इनकी रेज में जो पार्टिकल्स थे उनके पार्टिकल्स का मास था 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज था -1.60 इंटू 10⁻19 कॉलम। सो दीज पार्टिकल्स वर लेटर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। सो
the definition of electron is an electron can be defined as a subatomic particle. ये subatomic particle है which carries this much charge and this much mass, or 1/1837th mass of H atom. So now let us discuss the discovery of proton. जैसे कैथोड में से कुछ रेज निकली हैं, नेगेटिव साइड ग्लो करी है, तो लेटर ऑन ये भी बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ओनली कैथोड इज़ नॉट इजेक्टिंग सम रेज, एनोड इज़ ऑल्सो इजेक्टिंग सम पार्टिकल और सम रेज. दीज रेज क्योंकि ये एनोड से निकल रही हैं, तो दीज रेज शुड कैरी a positive charge because anode is positive charge, so these rays were called anode rays. और later on ये find out हुआ कि these rays consist of particle which have positive charge and that particles were called as protons. So for the discovery of proton, the experiment is Goldstein experiment, and this is the experiment in which the discharge tube is taken. Here this is anode electrode having positive charge, positive electrode, and cathode is used which is perforated, means ऐसा कैथोड यूज़ किया जिसके अंदर छेद हैं, परफोरेटेड कैथोड लिया हमने, नेगेटिवली चार्ज है. तो जैसे ही हाई वोल्ट, इन दोनों को हमने कनेक्ट करा है करंट के साथ, वोल्टेज के साथ, जैसे ही वोल्टेज ऑन करते हैं तो बाद में क्या देखा गया कि एक नेगेटिव जो है, नेगेटिव रेज जो हैं वो परफोरेटेड कैथोड के पीछे इकट्ठी हो गई हैं. और ये पता कैसे चला? बाय द ग्लो. जो कैथोड है उससे पीछे वाला जो डिस्चार्ज ट्यूब की साइड है वो ग्लो करनी स्टार्ट कर गई. इट मीन्स क्योंकि ये तो नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव है, कुछ चीज़ इसके ऊपर आके स्ट्राइक करी है, तो ओबियसली कौन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा? जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. क्योंकि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो आफ्टर सम टाइम जो कैथोड के पीछे वाली स्पेस थी वो ग्लो करनी स्टार्ट कर गई. इट मीन्स इधर कौन सी रेज इकट्ठी हुई हैं जिनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एंड दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज. Right, so these anode rays consist of particles which should carry positive charge, so इनको हमने नाम दिया protons. So now let us discuss some properties of proton. प्रोटॉन्स की जो प्रॉपर्टी हैं ऑलमोस्ट कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के साथ एनोड रेज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं. जैसे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, सेम वैसे है. ये भी हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी. दे ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. दीज रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, क्योंकि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये कौन सी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? व्हेन टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली एज जैसे कैथोड रेज थिन फॉइल, मेटल फॉइल से पास कर जाती थी, दे कैन ऑल्सो दे कैन कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस. दिस इज द न्यू करेक्टर that is not possessed by the cathode rays. These rays, anode rays, are capable of producing physical and chemical changes. Means ये किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम एनोड रेज डालते हैं तो ये उस सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकती हैं. So positive particle in these rays have much smaller EM वैल्यू देन इलेक्ट्रॉन. इन रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो E/m चार्ज टू साइज रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है, और इनकी जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड करती है व्हाट इज़ द गैस वी हैव टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. लेकिन जो कैथोड रेज थी उनकी जो नेचर थी वो इंडिपेंडेंट थी नेचर ऑफ गैस पे. सो लेटर ऑन दीज रेज में जो भी पार्टिकल्स थे उनको हमने कहा प्रोटॉन. सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन इज इट इज़ डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ ए मास नियरली 1 AMU और 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एंड ए चार्ज ऑफ प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. सो हमने प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए, उनकी डिस्कवरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. The first model of atom, Thomson model of atom, come into the scenario, and this model of atom is also called plum pudding model. क्यों इसको plum pudding model कहा गया? क्योंकि until this discovery,
थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल दो ही थे, कौन कौन से, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो थॉमसन ने क्या सोचा कि जो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ अ स्फीयर. ये जो पूरा स्फीयर है दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक रेजिन्स इन अ पुडिंग. जैसे रेजिन्स पुडिंग में पड़ी हैं, रेजिन्स होगी नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होगी रेजिन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज इज पुडिंग. सो दिस इज द model of atom, but later on this model was discarded, and there were many more discoveries about the third subatomic particle, that is neutron. So the next topic is discovery of nucleus. और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई? बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट we have another model, that is Rutherford's model or nuclear atomic model. So this topic, discovery of nucleus and scattering experiment, we will cover this topic in the next video.